Hello guys, in this class we are going to discuss the advantages of accounting. My dear students, these are quite similar to the functions of accounting and objectives of accounting as well as the characteristics of accounting. Now my students, we are going to read the first advantage of accounting. That is financial information about the business. Financial information about the business. We can come to know about the strength of the business by preparing the balance sheet of the business. In the balance sheet, we disclose all our assets as well as the liabilities. And financial information about the profits and losses by preparing trading account, profit and loss account. So हम कह सकते हैं अकाउंटिंग का ये फायदा होता है कि हमें बिजनेस की प्रॉफिट या लॉसेस के बारे में या फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चल जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बेस पर. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस शीट, वी कैन कम टू नो बाय कंपेयरिंग द असेट्स as well as the external liabilities of the business. Now students, we are coming to the next advantage, assistance to the management. Assistance means help. Advantage कैसे help करता है management की? By come to know, after coming to know that how much profit we have earned or the loss or the financial position, management can take the decisions regarding future. कि future में business अब कैसे strength करेगा, कैसे हमें expand करना है. हमारी फाइनेंशियल पोजीशन आज अच्छी है तो हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्यूचर में प्रॉफिट हमें अच्छा हो सकता है और फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी होगी, तो ठीक है अपने बिजनेस को बढ़ा लेते हैं या एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देते हैं या एम्प्लॉइज की सैलरी बढ़ा देते हैं या नई मशीनरी ले आते हैं, प्रोडक्शन इंक्रीज कर देते हैं. अ नंबर ऑफ डिसीजंस आर टेकन बाय द मैनेजमेंट. इज इट क्लियर? इट आल्सो हेल्प्स in preparing the budgets for the next accounting period, etc. Next advantage, replace of memory. It is not possible for everyone or anyone, we can say, that someone can learn or remember everything in the mind. Means all the transactions of business cannot be remembered in the mind by someone. It is required to record all these transactions in the books of accounts. It is required to replace the memory by recording all the transactions at a particular place in a systematic way. सारी चीजें याद नहीं रखी जा सकती, इसलिए सारे ट्रांजेक्शंस को हम एक जगह रिकॉर्ड कर देते हैं तो हमारी मेमोरी रिप्लेस हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल बेटा, जब हमें कभी लगता है ना आज ये टेंशन है, काम होना है, तो काम उसको तो लिख लो कहीं, या कि भूलना जाए, ये भी टेंशन क्रिएट करता है और भूल जाते हैं. तो इतना हेडेक ना दे दो, उन सारी चीज़ों को लिख ली जाती है कि क्या किसको कितना दिया, किसको कितनी सैलरी, कितना वेजेस दिया, किससे कितना परचेज किया. ऑल द थिंग्स आर रिकॉर्डेड सो दैट वी कैन रिप्लेस द मेमोरी एंड वी कैन बी फ्री विदाउट एनी टेंशन और बर्डन ऑन द माइंड. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी. कंपेरेटिव स्टडी बेटा, कंपेयर करना. अकाउंट्स में लास्ट ईयर के अकाउंट्स भी मेंटेन किए होंगे, इस साल के अकाउंट भी मेंटेन किए होंगे. एंड व्हेन यू कंपेयर द अकाउंट्स ऑफ द लास्ट ईयर्स एंड द करंट ईयर्स, देन you can come to know that in which year you earn the more profits, in which year the financial position of your business was good, by comparing the accounts of 2 years. Or if you are running 2 or more than 2 business firms, you compare the accounts of one firm with the accounts of another firm, which will tell you that which firm is going to earn higher profit or which firm's financial position is good. Comparative study. The next, facilitates the settlement of tax liabilities. While doing business, a number of taxes the business pay, a number of taxes, levies, duties, charges. And by our name called, we call a different name. For example, goods and service tax, etc.
as well as facilitates the settlement of tax liabilities, income tax also beta. With the help of the accounts, we maintain all the records in regarding the tax liabilities, direct tax or indirect tax, whatever, and we calculate the income, the taxable income on which the tax is charged and is paid to the government. Next, facilitates loan. लोन में फैसिलिटेट्स कैसे करता है अकाउंट्स? बिजनेसमैन को या किसी भी पर्सन को कोई दूसरा पर्सन तभी उधार देगा जब वो ये जान जाएगा कि इसको ठीक कमाई हो रही है और इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और ये आप केवल अकाउंट्स के थ्रू ही बता सकते हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप अकाउंट्स मेंटेन करके चलें, ताकि whenever you are going to take loan, when you are applying for loan from the bank or any financial institution, or you are asking the creditors to purchase the goods on credit basis, they will see your accounts and then they will make them assured about our financial position and the profitability. By assuring them, then they will give us the loan, and our suppliers will give us goods on credit basis. Clear? आप यदि मैं ही एक बिजनेसमैन हूँ, मैं किसी से उधार लेने पहुंच जाऊँ तो कोई मुझे पैसा नहीं देने वाला। वो जानना चाहेगा सर आपको इनकम कितनी हो रही है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है। वो प्रॉफिटेबिलिटी भी जानना चाहेगा, फाइनेंशियल पोजीशन भी ना जानना चाहेगा। जब मैं उसे अकाउंट्स के थ्रू अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिटेबिलिटी शो कर दूंगा, उसको ट्रस्ट हो जाएगा, वो इंश्योर हो जाएगा कि हाँ प्रॉफिटेबिलिटी है और फाइनेंशियल पोजीशन है कि मैं उसके लोन का टाइमली पेमेंट करता रहूँगा, तभी ही वो मुझे लोन देगा। तो बेटा जब हम बैंक से लोन लेते हैं ना, तो एक हमें रिटर्न भी शो करनी पड़ती है, फाइल हम शो करते हैं। नेक्स्ट, एविडेंस इन द कोर्ट। विच कोर्ट वी आर टॉकिंग अबाउट? दिस इज द कोर्ट ऑफ लॉस। दिस इज द कोर्ट ऑफ लॉस। जो आप कोर्ट सुनते हैं, ये वो लॉस हैं। यदि किसी ने हम पर कोई क्लेम किया है या किसी भी तरीके का हमारे ऊपर केस आया है और लोग कह रहे हैं कि नहीं ये फ्रॉड है जी, इसने मेरे साथ ऐसे चीटिंग की है, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेकर, तो उस बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हमने जरूर रखा होगा कहीं ना कहीं अकाउंट्स के अंदर। हम अपने अकाउंट्स जो कि सिस्टमेटिक वे में हम रिकॉर्ड किए हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का यूज़ करते हुए लॉस, कोड ऑफ लॉज में शो कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे अकाउंट सिस्टमेटिक वे में मेंटेन है, तो कोर्ट उस पर ट्रस्ट करती है और एविडेंस की तरीके से काम किया जाता है। आप कहते हैं नहीं सर आप तो कैसे भी अच्छे से बना के चले रिपोर्ट, हाँ कैसे भी, लेकिन आपको बताइए एविडेंस वर्ड आ रहा है बेटा। अकाउंट्स एविडेंस के तरीके से काम करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स एविडेंस के बेस पर प्रिपेयर किए जाते हैं। तो वो एविडेंस क्या होते हैं? आपके कैश मीमो और रिसिप्ट्स एटसेट्रा, इनवॉइस। जब हम किसी से परचेज करते हैं या किसी को सेल करते हैं तो एक रिसिप्ट दी जाती है कि किसने हमसे क्या खरीदा, कितना खरीदा, किस डेट को खरीदा, उसका प्राइस क्या था, क्या डिस्काउंट थी, और एक रिसिप्ट हम उसको दे देते हैं, एक हमारे पास रह जाती है। इनको वाउचर्स, कैश मीमो, इनवॉइस ये सब कहा जाता है, जो कि एविडेंस बन जाते हैं, और उन एविडेंस के बेस पर अकाउंट्स बनते हैं, और इसीलिए अकाउंट्स को हम एविडेंस कहते हैं कोर्ट के अंदर किसी भी डिस्प्यूट को दूर करने के लिए। नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। If we want to sell, if someone want to sell the business, then it is required the consideration कि कितने का उसकी वैल्यू है, वैल्यू कैलकुलेट की जाती है बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग here I am preparing a balance sheet for you. Balance sheet. Here you are writing the liabilities,
मीन्स आपकी ड्यूटीज जो आपको बाहर वाले को किसको पे करना है, लायबिलिटीज, एंड हियर असेट्स, आपके बिजनेस की प्रॉपर्टीज। आपकी जो असेट्स हैं टोटल, कार, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, टोटल जो असेट्स हैं जिसे हम कह रहे हैं सन्ड्री एसेट्स, अलग अलग तरीके की सन्ड्री एसेट्स, वो 20 लाख रुपीज की। और आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है, एक्सटर्नल जैसे क्रेडिटर्स, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फ्रेंड्स, बिल्स पेबल्स एक्सेट्रा, ये आपके 4 लाख की हैं। आपकी अपनी असेट्स बेटा टोटल बिजनेस के अंदर असेट्स 20 लाख हैं, जबकि आपके बिजनेस में 4 लाख उधार लिया हुआ है। अपना खुद का कितना होगा, अपना खुद का जिसे कहते हैं कैपिटल कितनी होगी, दैट इज 16 लाख रुपीज, 16 लाख। तो आप ऐसे पर्सन का बिजनेस खरीदने जा रहे हैं, परचेज करने जा रहे हैं, जिसकी बैलेंस शीट ये ही, उम्मीद करते हैं कि आप उसे 16 लाख रुपीज का पेमेंट कर देंगे, क्योंकि when you are purchasing the business of that very person, you are acquiring the assets of rupees 20 lakh as well as the liabilities also of rupees 4 lakh. That's why you will give a sum of rupees 16 lakh only. That is the purchase consideration for the business. Is it clear? Next, assistance in the event of insolvency. Insolvency बेटा, insolvent होना, insolvency क्या होती है, जरा ध्यान से देखें बेटा। ये आपके लिए इंसॉल्वेंसी का केस बना देते हैं इसको। किसी के बिजनेस में 20,000 की एसेट्स हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है 15 लाख की है एसेट्स, और सॉरी आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, 20 लाख की एसेट्स हैं और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो पे करनी है 15 लाख रुपीस की है। तो उस बिजनेसमैन का अपना खुद का कितना होगा, केवल 5 लाख। अब जरा ध्यान से देखिए, टोटल एसेट्स 20 लाख, जबकि कर्जा लिया हुआ है बाहर से 15 लाख का, तो अपना खुद का कितना उसमें 5 लाख। बैलेंस शीट का बेटा दोनों साइड का टोटल इक्वल होता है, बता दें आपको, 20 और 20। क्या इस पोजीशन में ये पर्सन अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट कर पाएगा? शायद नहीं, और हो सकता है ये बढ़ती बढ़ती और ज्यादा हो जाए, एक्सटर्नल लायबिलिटीज बढ़ती जाए और कैपिटल घटती जाए। ये कब होता है बेटा? जब आपके बिजनेस में लगातार लॉस हो रहा होता है, तो आपकी एक ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आप अपने डेब्ट्स का पे नहीं कर पाते हैं। मींस वी कैन से दिस इज द पोजीशन ऑफ एनी बिजनेस और बिजनेसमैन इन विच the business or businessman is not capable, is not in the position of paying the debts of the firm. It's called insolvency. Insolvency is the position in which a business or businessman is not capable or not the position to pay the debt of the firm. ठीक है, ये तो insolvency हो गई। But how we can say assistance? Assistance means help. हेल्प कैसे करते हैं अकाउंट्स बेटा? बिजनेसमैन पर ये ट्रस्ट नहीं करेगा कोई भी कि उसको इतना लॉस हो चुका है कि वो पे नहीं कर पा रहा है। आप कहेंगे झूठ बोल रहा है, इसको प्रॉफिट तो खूब होता है, ये पे नहीं करना चाहता, हमें अभी झूठ बोल रहा है, अपना बिजनेस बंद करके जा रहा है, इसने सारा पैसा खा लिया उधार लेकर। द बिजनेसमैन goes to the court of laws, and in the court of laws the accounts are shown. With the help of account, the businessman shows the profitability and the financial position of the business, and the court declares the businessman insolvent. Court declares the businessman insolvent.
says that the businessman is not in the position of paying debts. In this case, court decides that what amount is to be given to whom. Means कोर्ट डिसाइड ये करती है कि अब किस क्रेडिटर को कितना पे किया जाएगा। कोई बिजनेसमैन कहे जी मैं इंसॉल्वेंट हो गया, मेरे पास पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट अकाउंट्स मंगाएगी, अकाउंट्स के बेस पर वो कहेगी कि हाँ ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो चुका है, और कोर्ट ये कह दो उसको बचा लेगी पर्सन को कि दूसरा बाहर वाला कोई कुछ ना कहे, और कोर्ट अपने हिसाब से फिर पेमेंट करती है, ठीक है, कि किसको कितना पेमेंट करना है। नेक्स्ट, हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट्स when two or more than two person willingly join together to run a lawful business is called partnership. जब दो या दो से ज्यादा लोग willingly इकट्ठा हो जाते हैं पार्टनरशिप बिजनेस रन करने के लिए, पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप में भी किसी को एडमिशन देना है तो उसको बताई जाती है कि कितनी असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी क्या है, अकाउंट शो किए जाते हैं ताकि नया पार्टनर एडमिट हो सके। कोई रिटायर हो रहा है कि पार्टनरशिप में से कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है कि मैं नहीं जा रहा, मुझे मेरा हिस्सा दे दो, तो अकाउंट शो किए जाते हैं। पार्टनर्स प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो प्रॉफिट्स निकलेंगे अकाउंट्स के बेस पर, तो अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू हैव गॉट ऑल दीज टॉपिक्स in a good manner or best way, because I have given you the complete explanation. I try to give the explanation in quite depth. Thank you.